Strings in Python. Today we will study about strings in Python. What is a string? You must have heard of a string. String means a group of beads that make some kind of a string. Okay. Same way here in Python, string is a sequence of characters. Like hello, how many characters are there? 5. So it is called a string. Here string is a group of characters and it is enclosed in either single quotes or in double quotes. Here both are examples of string. How do we create a string? A equal to good morning. So here good morning is a single string. Good morning is a single string. So here string is different from word in English. In English, word is a group of characters and string is a group of characters enclosed in double quotes. So here it is a string. If you will print A, then it will display good morning on the screen. Okay, so suppose you want to display on the screen, this is Mira's pen. So you know a single quote has some special meaning in Python. So to override the special meaning, I will write like this. This is Mira slash override करने के लिए single quote S pen. Okay. So when you will display print A, it will display this is Mira's pen. Okay. Now here it will display me. This is Mira's pen. ठीक है. So slash होता है single quote के special meaning को override करने के लिए. If you want to create a blank string, S equal to blank string, and when you will display print on the screen, it will display screen empty string. कुछ भी display नहीं होगा, खाली आ जाएगा बस. ठीक है. So these are the ways to display something on the screen. Suppose तुम्हारे पास 3-4 लाइन्स हैं एंड वो इट कैनॉट कम इन अ सिंगल लाइन. ठीक है. तो उस केस में हमने क्या करना है, तो वी विल राइट लाइक here is a line. To continue to the next line, you just need to put slash. Split in 2 lines. ठीक है. ये आपने 2 लाइन लिखी, बीच में स्लैश लगा दी. तो when you will display S on the screen, here is a line split in 2 lines. Okay, so it will display on the screen. यानी आपने एक ही लाइन को अगर लिखते हुए आपके पास एक लाइन में नहीं आ रही, तो आप उसको स्प्लिट करके 2 लाइन में कर सकते हो, बट यू हैव टू ऐड दिस स्लैश इन बिटवीन. And when you will display, it will display as a single line on the screen. ठीक है. Now next new line character. Same way as अब मुझे डिस्प्ले कराना है. This is my world. This is my pen. Slash n. It is of red color. ठीक है. और जब आप इसको प्रिंट टेस्ट कराओगे तो क्या होगा, इट विल डिस्प्ले दिस इज माई पेन एंड स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन. इट इज़ ऑफ रेड कलर. ठीक है. तो यानी जो स्लैश एन है इट विल बिकम न्यू लाइन करेक्टर. जहाँ पे भी स्लैश एन होगा वहाँ पे नई लाइन शुरू हो जाएगी. सो तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जब MCQ के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आउटपुट बेस्ड होते हैं. ठीक है. सेम वे जैसे हमने स्लैश एन किया, स्लैश किया, नाउ स्लैश टी, नेम क्लास. ठीक है. और जब मैं इसको प्रिंट A1 करूँगी तो क्या होगा, क्या डिस्प्ले होगा, नेम, फिर उसमें
काफ़ी स्पेसेस आएंगे देन क्लास विल बी डिस्प्लेड. सो /t फॉर स्पेसेस, टैब स्पेसेस. ठीक है. नाउ मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स. मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स में क्या होता है? देखो, अगर आपने बहुत 10-15 लाइन्स आपने इकट्ठी लिखनी है तो क्या करोगे? आइदर यू पुट /// वो डिस्प्ले करने ये आपके पास 3 एक होता है ट्रिपल सिंगल कोट. 3 बार सिंगल कोट डालना है. जब तक आप 3 बार सिंगल कोट ख़त्म क्लोज नहीं करोगे तब तक जो भी आप कुछ लिखोगे दैट विल बी ट्रीटेड एज मल्टी लाइन स्ट्रिंग. ठीक है. ओके. सो हेयर आई हैव एंडेड विद ट्रिपल कोट. सो तुम्हारी एक स्ट्रिंग बन गई. एक ही स्ट्रिंग है लेकिन आपने उसको मल्टी लाइन्स में, मोर देन 1 लाइन्स में लिखा है. सो व्हेन यू विल डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन, प्रिंट एज इट विल डिस्प्ले दिस स्ट्रिंग इन 3 लाइन्स. ठीक है. चाहे आप इसको ट्रिपल कोट से शुरू कर दो, चाहे आप ट्रिपल डबल कोट से शुरू कर दो, एक ही बात है. पाइथन में सिंगल कोट या डबल कोट दोनों बोथ आर सेम. ठीक है. ट्रिपल कोट से जो कुछ लिख सकते हो आप सिंगल कोट से भी लिख सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज we will do traversing of string. Traversing means manipulating a string. Traversing a string. Okay. Hello world. Hello world सपोज एक स्ट्रिंग है तो इसकी पोजीशन क्या लेता है सिस्टम? 0 से शुरू करते हैं. 0 1 2 3 4 स्पेस के लिए 5 6 7 8 9 10. सो दिस इज इंडेक्स पोजीशन. ठीक है. याद रखना इसको क्या बोलते हैं हम? इंडेक्स पोजीशन. और यहाँ उल्टा चलें तो ये -1 से शुरू करता है. -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11. और इसकी लेंथ कितनी है इस स्ट्रिंग की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. लेंथ इज 11. ठीक है. तो तुम्हें इंडेक्सिंग का याद रखना है और लेंथ याद रखनी है. इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्स और इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्स. ओके. नाउ इफ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट ईच कैरेक्टर, सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है पाइथन वर्ल्ड, तो हम क्या करेंगे? आउट कैसे करेंगे? फॉर आई इन str स्ट्रिंग प्रिंट आई. तो क्या होगा? देखो स्ट्रिंग क्या है? एक सीक्वेंस है ना, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. तो एक एक कैरेक्टर किस में आता जाएगा? आई में आता जाएगा. और आई तुम डिस्प्ले कर रहे हो. सो इट विल डिस्प्ले पाइथन स्पेस वर्ल्ड. इट विल डिस्प्ले लाइक दिस. ये आउटपुट आएगी इसकी. ठीक है. इस लूप की लूप्स तुम्हें करा दी हैं. स्ट्रिंग में से एक एक करैक्टर आई में आता जाएगा और यहाँ पर डिस्प्ले होता जाएगा. जब स्ट्रिंग के सारे करैक्टर ख़त्म हो जाएंगे तो लूप स्टॉप हो जाएगी. इफ़ यू वांट टू नाउ दिस वाज टू डिस्प्ले ऑल द करैक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग. नाउ अनदर इज टू डिस्प्ले लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. देखो स्ट्रिंग का मेरा क्या नाम है? पाइथन प्रोग्रामिंग. दिस इज माई स्ट्रिंग. इंडेक्स मैंने इनिशियली ऐसे लिख दिया 0. ठीक है. अब मैंने लूप लगाई. अब तुम्हें वाइल लूप भी कराई हुई है मैंने. वाइल इंडेक्स इज लेस देन लेंथ. len इज़ अ फंक्शन. ये ऑलरेडी पाइथन आपको फंक्शन दे के रखता है. ठीक है. लेंथ कितनी है इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 लेंथ है. ठीक है. तो इंडेक्स 18 से हमेशा कंपेयर कर रहे हैं हम. और हम इंडेक्स को हर बार +1 करते जा रहे हैं. सो एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन यू विल गेट द लेंथ इन इंडेक्स वेरिएबल. ये जस्ट एक प्रोग्राम है. अदरवाइज जब भी तुम्हें लेंथ फाइंड आउट करनी हो देयर इज़ अ सिंपल मेथड लेंथ. कोई भी वेरिएबल जिसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है बीच में लिखो ब्रैकेट्स के len फंक्शन यूज़ करो. इट विल डिस्प्ले लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग. ठीक है. सो
these were the question. Now we'll do another question. These all are programs जो भी मैं तुम्हें करा रही हूँ, everything is given in your book. ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ बुक वाला इसलिए करा रही हूँ ताकि अगर तुम्हें कोई डाउट हो, रिवाइज करना हो या कहीं मिस हो गया हो तो यू कैन सी दैट. अदरवाइज दिस लेक्चर इज़ अवेलेबल ऑलवेज टिल योर 12th एंड. ठीक है, अब हमने देखना है कि एक करैक्टर एक स्ट्रिंग में कितनी बार आया. जैसे हेलो में एल कितनी बार आया, 2 बार. तो हम ऐसे प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे कि वो करैक्टर कितनी बार आ रहा है. ठीक है, सबसे पहले हमने थोड़ा इसको फ्लेक्सिबल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम यूज़र से पहले स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे. अब यहाँ पे इंट नहीं यूज़ करेंगे हम. तुम्हें पता है स्ट्रिंग करैक्टर्स में इंट में सिर्फ इंटीजर्स आते हैं. तो यहाँ हेयर नो नीड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू इंटीजर. एंटर अ स्ट्रिंग आपने एंटर कराई, वो ए में आ गई. ठीक है, अब हम यूज़र से ये भी पूछेंगे भाई तूने कौन सा करैक्टर सर्च करना है. इनपुट एंटर सर्चिंग करैक्टर. कौन सा करैक्टर है जो तुम चाहते हो सर्च करना. वो कहेगा, सपोज उसने हेलो एंटर किया यहाँ पर, तो अगर वो लिखेगा एल तो मैं उसको 2 आंसर दूंगी. अगर वो करेगा ओ तो मैं उसको 1 आंसर दूंगी. ठीक है, एक हम काउंटर लगा देते हैं जो काउंट करके इसमें स्टोर करेगा. अब फॉर आई इन ए, यानी ए में जितने भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं वो सारे एक एक करके इसमें जाते जाएंगे आई में. और हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ़ आई इज़ सेम एज बी. अगर बी के बराबर, बी में क्या है, सपोज मैंने लिखा हुआ है हैप्पीनेस. ठीक है, और मैंने यहाँ पे बी में क्या, ए में हैप्पीनेस है और बी में एंटर किया मैंने पी. ठीक है, तो आई में क्या आएगा, सबसे पहले एच आएगा. एच को कंपेयर करेगा, एच इक्वल टू पी. बी में क्या है वैल्यू, पी. तो चेक करेगा एच इक्वल टू पी. फॉल्स है तो काउंट को इंक्रीज़ नहीं करेगा. अगर फॉल्स नहीं है तभी काउंट को इंक्रीज़ करेगा. तो हमने एल्स में कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि अगर सेम नहीं है, इफ़ पी इज़ नॉट इक्वल टू एच तो कुछ भी नहीं करना. तो अगला करैक्टर कर लो. अगला करैक्टर उठा के आई में डालेगा, ए में से ए डालेगा. फिर ए को पी से कन्वर्ट चेक करोगे, नहीं है कुछ तो फिर पी को आई में डालेगा. फिर पी इक्वल टू पी, यस ही गॉट द पी. पी है तो काउंट को इंक्रीज़ कर दो. अगली बार फिर से उसको पी मिलेगा, पी इक्वल टू पी अगेन पी, देन अगेन इट विल इंक्रीज. तो काउंट विल बी इंक्रीज 2 टाइम्स. उसके बाद कभी उसको पी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके बाद स्ट्रिंग में कहीं पी नहीं है. ठीक है, सो काउंट हैज़ इंक्रीज ट्वाइस, 2 टाइम्स. सो आफ्टर द एंड, एट द एंड ऑफ द लूप यू डिस्प्ले काउंट ऑफ p is 2. ठीक है, so this is a program to display the count of character present in a string. Now अब हमने क्या करना है, अब हमने अगला प्रोग्राम करना है. उसमें क्या है, टू इनपुट अ स्ट्रिंग. हमने यूज़र से इनपुट करवानी है स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स रिवर्स ऑर्डर. अब उसका उल्टा ऑर्डर. ठीक है, हमने उसको सपोज उसने हेलो लिखा है तो हमने OLLEH डिस्प्ले करना है उल्टा. तो सबसे पहले हमने यूज़र से इनपुट करवानी है स्ट्रिंग. एंटर अ स्ट्रिंग. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एंटर करने के बाद स्ट्रिंग क्या करना है, हम हमने लूप चलानी है. लेकिन लूप में हमने कैसे चलाना है, उसको उल्टा चलाना है. ठीक है, हमने रेंज फंक्शन किया हुआ था. रेंज फंक्शन में हमने 0 से नहीं शुरू करना, हमने पीछे से शुरू करना है. पीछे से इंडेक्स क्या होता है, लास्ट इंडेक्स क्या होता है, हमने पीछे से शुरू करना है, -1. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 से शुरू करो और कहाँ तक जाओ, बिगिनिंग तक. ठीक है, बिगिनिंग में क्या है, बिगिनिंग में जितनी लेंथ है उसकी, लेंथ है जितनी उसको माइनस में, यानी -10 तक जाना है, -11 तक जाना है. माइनस मैंने तुम्हें कहा था जो यहाँ पे जो भी नंबर लिखते हो तो एक्सक्लूडिंग होता है वो नंबर, तो उसके एक पीछे तक जाता है. ठीक है, तो इसलिए -1 आई विल डू एक्स्ट्रा -1. और हर बार क्या कर रहे हैं, -1. स्टेप क्या होना चाहिए, -1. देखो इसको मैं करने से पहले तुम्हें बता दूँ. लाइक जैसे मैंने यहाँ पर 9 है, 0 -1 है, -2 -3. हाउ विल आई अचीव -1 से मैं -2 तक कैसे पहुँचूँगी. इन दोनों में स्टेप डिफरेंस क्या है, -2 से
1 से -2 तक पहुंचने के लिए स्टेप डिफरेंस क्या है, -2. सो हेयर इज दिस इज स्टेप डिफरेंस. ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है मैंने, -1. सो दिस इज स्टार्ट. ठीक है, कहाँ तक पहुँचना है मुझे, -11 तक पहुँचना है मुझे. -11 कैसे आएगा, लेंथ कितनी थी हमारी स्ट्रिंग की, सपोज ज्यूम कर रहे हैं हम कोई भी स्ट्रिंग, उसकी लेंथ सपोज उसकी 12 है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -11, सॉरी 11 है उसकी स्ट्रिंग. तो हम क्या करेंगे, लेंथ कितनी है उसकी, -11, तो -11 -1 मतलब -12 कंसिडर करेंगे, तभी वो -11 तक रुकेगा जाके. सो दिस इज द लास्ट पोजीशन, +1 और -1. ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट एस ऑफ आई. तो क्या करेगा वो, एक एक करेक्टर को डिस्प्ले करेगा बट उल्टे ऑर्डर में. इफ़ आई एम राइटिंग हैप्पीनेस, इट विल डिस्प्ले हैप्पीनेस, इन रिवर्स ऑर्डर. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ये प्रोग्राम को लिखूँ तो मेरा ये हैप्पीनेस ऐसे डिस्प्ले करेगा, SSENIPPAH. ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में. सो दिस इज़ द प्रोग्राम टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर. अब बहुत सारे स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमें काम आते हैं बार बार. अब देख आगे प्रोग्राम्स करोगे, क्लास 12th में जाओगे, सो मैनी प्रोग्राम्स, तो हम सारे एक एक जो स्ट्रिंग्स के फंक्शंस हैं हम सारे एक एक करेंगे. हमने कुछ पहले भी किए हुए हैं, जैसे प्लस तुम्हें पता है कंकैटिनेशन के लिए यूज़ होता है, टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स कंकैटिनेशन, लाइक हेलो प्लस वर्ल्ड एस इक्वल टू हेलो प्लस वर्ल्ड. तो यहाँ पे आपने क्या किया, दो स्ट्रिंग्स को ऐड किया है प्लस से. तो एस में जब आप प्रिंट एस करोगे तो क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड. ठीक है, सो उसके बाद वैसे ही स्टार से क्या होगा, रेप्लिकेट. रेप्लिकेट मतलब रिपीटेशन, लाइक प्रिंट हेलो स्टार 3. तो हेलो विल बी डिस्प्लेड 3 times. तो स्टार इज ऑपरेटर टू डिस्प्ले a string the number of times mentioned. ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, ओके रेप्लिकेट हो गया. अब हमारा एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास 2 होते हैं, ये भी हमने किए हुए इन नॉट इन. ठीक है, लाइक प्रिंट एच इन हेलो. ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या एच प्रेजेंट है हेलो में, इज एच प्रेजेंट इन हेलो. आंसर इसका क्या आएगा, ट्रू. ठीक है, अगर मैं लिखूंगी प्रिंट एक्स इन हेलो तो इसका क्या आएगा, फॉल्स, बिकॉज एक्स इज नॉट प्रेजेंट इन हेलो. तो नॉट इन एंड इन का यही काम होता है. अगर मैं यहाँ पे नॉट इन कर दूंगी तो क्या होगा, एक्स इज नॉट प्रेजेंट इन हेलो, ट्रू. ठीक है, सो दीज आर मेंबरशिप ऑपरेटर्स. नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी 12th का जो मैं सैम्पल पेपर देख रही थी जो CBSE ने जनरेट किया है, उसमें स्ट्रिंग के 6 क्वेश्चंस हैं बेटा. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. सबसे पहले तुम्हें वैल्यूज़ याद करनी है, और तुम्हारे बुक के टेबल में दी हुई हैं ऑर्डिनल वैल्यूज़ और स्काई वैल्यूज़ भी बोल देते हैं हम. ठीक है, ए की स्काई वैल्यू कितनी है, 65. यानी जब तुम ए टाइप करते हो प्रिंट कीबोर्ड से तो उसकी डेसिमल वैल्यू क्या बनती है सिस्टम में जाके, 65. वैसे जेड तक 26 करेक्टर्स होते हैं, जेड तक ऐड करोगे तो 90 बनती है. ठीक है, स्मॉल ए की स्मॉल जेड तक की 97 to 22. तो तुम्हें सिर्फ यही याद करनी है, तुम्हें आगे +1 करके ऐड कर सकते. तुम्हें पता है बी की कितनी होगी 66, सी की कितनी होगी 67, क्या स्मॉल ए की 97, ये याद रखना है हमेशा. ठीक है, ज़ीरो की भी ऐसे कुछ वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू होती है 48 और 9 तक होता है 57. सो दीज 3 वैल्यूज़ यू शुड नो ऑल द टाइम. ओके, तो हमने अभी तुम्हें मैंने एक कराया था रेंज कराई थी ना. रेंज में क्या होता है, रेंज में 3 चीज़ें देते हैं हम,
स्टार्ट एंड स्टेप। हेयर एंड वैल्यू इज एक्सक्लूडेड। मैं तुम्हें बहुत बार बता रही हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेम वे हमारे पास जैसे रेंज होता है वैसे हम स्ट्रिंग में भी हम उसको स्लाइस, अब हम कर रहे हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग के टुकड़े टुकड़े करने के लिए भी हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। जैसे सपोज मेरे पास एस है, एस में है हेलो, और अगर मैं प्रिंट कर रही हूँ, अब ध्यान से देखना, प्रिंट कर रही हूँ एस ब्रैकेट में 2, तो क्या आएगा आउटपुट? इसकी पोजीशन 0 1 2, एल की पोजीशन है 2, इसकी है 2 पोजीशन, इट विल डिस्प्ले एल ऑन द स्क्रीन। ठीक है, और अगर मैं चाहती हूँ, मैं डबल एल एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? कहाँ से शुरू करना है मुझे? 2 से शुरू करना है। कहाँ तक जाना है? 3 तक जाना है। अब 3 तक जाना है यानी इस सेल की 0 1 2 3 4, इस सेल की पोजीशन क्या है? 3 है ना, लेकिन मुझे +1 करके लिखना पड़ेगा, सेम एज रेंज। और स्टेप क्या है? 2 के बाद क्या दिखाना है मुझे? 3, स्टेप इज़ 1। ठीक है, सो इट विल डिस्प्ले एल डबल एल ऑन द स्क्रीन। तो दिस इज स्ट्रिंग स्लाइसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले हमारा कुछ छूट गया बेटा, तो मैं यहाँ इसका ही वैल्यू पे कुछ क्वेश्चन है वो छूट गए भी, मैं कराती हूँ। चलो स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हैं अब हम। ठीक है, अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग में आई थिंक यू शुड बी वेरी क्लियर नाउ। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल्स करते हैं इसके। सपोज ए इज़ हैविंग सेव मनी, सेव मनी। ठीक है, ओके, अब तुम मुझे आंसर साथ साथ चेक करते जाना अपने। 1:3, अब 1:3 का आंसर क्या आएगा? इसकी पोजीशन लिख देती हूँ मैं। 1:3 में 1 से लेकर 3 तक, तो आंसर क्या आएगा? ए वी। ई नहीं आएगा क्योंकि ई एक्सक्लूडिंग है, मैंने कहा था ना -1 करके दिखाता है। अब वैसे ही अगर मैं लिखूँ प्रिंट ए 3 कॉलन, अब मैंने 3 के बाद बताया नहीं कहाँ तक जा, तो वो क्या करेगा? वो एंड तक जाएगा। ठीक है, 3 कॉलन, 3 कॉलन मतलब 3 से शुरू हो जाओ, 3 से शुरू हो जाओ मतलब ई से शुरू हो जाओ, ई स्पेस फिर मनी। जब आपने कुछ नहीं दिया तो मीन्स स्टेप वैल्यू 1 है और टिल एंड ऑल कैरेक्टर्स विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, और अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया, स्टार्ट भी नहीं दिया, एंड भी नहीं दिया, स्टेप भी नहीं दिया, तो इसका मतलब स्टार्ट शुरू से होगा बिल्कुल, एंड लास्ट तक होगा, और स्टेप वैल्यू क्या है? 1। इट विल डिस्प्ले कंप्लीट सेव मनी। ठीक है, प्रिंट -2 कॉलन। अब देखो -2 मतलब नेगेटिव इंडेक्स से शुरू हो रहा है, -2 से लेकर कहाँ जाएगा? हमेशा ये आगे ही जाता है, मतलब इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, तो -2 से कहाँ जाएगा? और मैं इसका इंडेक्स देखो -1 -2, -2 के आगे क्या है? -1 ओनली, सो इट विल डिस्प्ले ई वाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ओके, प्रिंट ए कॉलन -2, कॉलन -2 मतलब अब हमने शुरू नहीं बताया, उसने कहा शुरू से लेकर -2 तक जाओ। अब शुरू से क्या मतलब? 0 से लेकर कहाँ तक जाओ? -2। सो इट विल डिस्प्ले सेव SAVE स्पेस MON। -2 ई का है, लेकिन वो लास्ट पोजीशन क्या होती है? एक्सक्लूडिंग, तो इसलिए n तक जाएगा। ठीक है, ओके, अगर मैं स्टार्ट पोजीशन नहीं देती, एंड पोजीशन नहीं देती, लेकिन स्टेप पोजीशन दे देती हूँ, तो स्टेप पोजीशन मतलब एक एक छोड़ के, तो एस के बाद वी, वी के बाद स्पेस, स्पेस के बाद एम, एम के बाद एन। ठीक है, देन वाई। एस के बाद वी, वी के बाद ई छोड़ा हमने, फिर स्पेस आई, फिर एम छोड़ा, फिर ओ आया, गड़बड़ कर दी हमने। एस के बाद एक छोड़ा वी आया, वी के बाद एक छोड़ा स्पेस आई, स्पेस के बाद एम छोड़ा, ओ आया, ओ के बाद एन छोड़ा, ई आया। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। ना जो हमारा पीछे रह गया था हम वो कंप्लीट करते हैं। वो था हमारा, हमें ऑर्डिनल वैल्यूज़ तुम्हें बता रही थी ना। अब अगर एग्ज़ाम में आता है कि प्रिंट डिक्शनरी ऑर्डर, तुम सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है डिक्शनरी ऑर्डर से। अब तुम मुझे बताओ इन दोनों में से वेदर दीज टू आर इक्वल और नॉट, फॉल्स।
इक्वल तभी होंगे अगर यहाँ पर भी टीम होगा और यहाँ पर भी टीम होगा, ठीक है। ये क्या करता है पाइथन में, एक एक करेक्टर करके चेक करता है, ठीक है, एक एक करेक्टर। जैसे पहले टी मैच कर रहा था, फिर उसने आई को चेक किया, फिर एम और ई को चेक किया, अगर सारे इक्वल होते तो ट्रू आ जाता, अब सारे इक्वल नहीं है तो फॉल्स आ गया। सपोज सेम वे इफ आई राइट फ्री नॉट इक्वल टू फ्रीडम, सो दिस इज ट्रू बिकॉज फ्री तक चेक किया तो सेम था, लेकिन आगे चेक किया तो इसमें डम DOM है, सो इट इज़ ट्रू, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, राइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट, तो तुम्हें सबसे पहले आर का चेक करना है, साइज नहीं चेक करना कि ये 5 करेक्टर हैं, ये 4 करेक्टर हैं, नंबर ऑफ साइज नहीं चेक करने, करेक्टर बाय करेक्टर चेक करता है पाइथन में। आर को एल से कंपेयर करो, कौन सा बड़ा है, आर बड़ा होता है या एल, LMNOPQR, आर बाद में आता है ना, तो इसलिए आर बड़ा हुआ, तो ये अगला करेक्टर चेक ही नहीं करेगा, इट विल डिस्प्ले ट्रू। पाइथन में करेक्टर बाय करेक्टर चेक होता है, लेंथ नहीं देखी जाती, ओके। नेक्स्ट इज टीथ, इफ आई से टीथ लेस देन टी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, टी को कंपेयर करेगा, ई को कंपेयर करेगा, ई फिर नेक्स्ट ई को कंपेयर करेगा, लेकिन यहाँ पे अब जब ये टी को कंपेयर करने लगा, यहाँ पे फोर्थ करेक्टर है ही नहीं, तो इट मीन्स क्या हुआ, ये बड़ा हुआ ना, दिस इज बिगर, सो इट विल डिस्प्ले फॉल्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है। नाउ आई गिव यू वन एग्जाम्पल मोर, तुम अपने आप बताना कि क्या आएगा इसका आंसर। अब इस केस में अगेन इट विल स्टार्ट कंपेयरिंग विद फर्स्ट करेक्टर, फर्स्ट करेक्टर को कंपेयर किया तो क्या हुआ, या वाई कैपिटल है या एफ, ऑफ कोर्स वाई, सो आंसर विल बी फॉल्स। एंड इफ आई कंपेयर ABC विद ब्लैंक स्क्रीन, खाली से कंपेयर कर रही हूँ, तो क्या होगा, खाली है, तुम्हें पता है कि खाली है तो बड़ा यही होगा जो भरा हुआ होगा, ठीक है। सो इसके क्वेश्चन आया हुआ है सैम्पल पेपर में, ग्रेटर देन बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, सो प्लीज़ टेक केयर आई रिवाइज एवरीथिंग। अभी बहुत सारे हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस पड़े हैं, हम वो भी करेंगे एक एक करके, ठीक है। Now next we will do some built-in string methods and string functions. Before that I want to just tell you one thing. Strings are one important property of strings. Strings are immutable. Immutable मतलब they cannot modified ever. ठीक है, कैसे, अब इसको कैसे हम देखें, जैसे string 1 में मैंने डाल दिया हेलो, ठीक है, हेलो ए, मुझे अब ध्यान आया अरे हेलो ए की जगह मुझे हेलो बी करना था, तो व्हाट आई विल डू, अब मुझे इसकी इंडेक्स पोजीशन तो पता है, str1 ऑफ -1 इक्वल टू बी, मैं ये कर सकती हूँ ना, आई कैन डू दिस, बट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, यू कैन नॉट मॉडिफाई द स्ट्रिंग, यू कैन नॉट मेक एनी चेंज इन द स्ट्रिंग, सो दिस विल गिव यू एन एरर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो अगर आपने ऐसे कर रहे हैं, अगेन यू विल क्रिएट स्ट्रिंग हेलो बी, अगर आपने ऐसे करना तो ऐसे कर लो, तो क्या होगा, जो पहले स्ट्रिंग 1 बनी होगी थी वो डिलीट हो जाएगी और नई स्ट्रिंग 1 के नाम से एक वेरिएबल बन जाएगा जिसमें हेलो बी आएगा, ओके। चलो, नाउ आई हैव टोल्ड यू दिस कि स्ट्रिंग्स आर नॉट म्यूटेबल, कैन नॉट बी चेंज्ड। नाउ we will do string methods, few of the string methods which will you use frequently in many of the programs, okay। string चैप्टर एक कितना important है जो तुम्हारे 12th के एंड तक चलेगा। string methods and built-in functions, जो पाइथन हमें functions बना के देता है, ठीक है। फर्स्ट वी हैव डन len फंक्शन आपको बताया था अभी मैंने, ठीक है, इसका मुझे एग्जांपल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऑलरेडी कराया। नेक्स्ट इज capitalize if you want to make first letter of any string capital while displaying, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका कैपिटल, क्या हो जाएगा फर्स्ट वर्ड, क्या हो जाएगा कैपिटल। देखो इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा है, इट विल जस्ट डिस्प्ले द आउटपुट, ये नहीं कि स्ट्रिंग का पहला लेटर हमेशा के लिए कैपिटल हो जाएगा, नहीं, सिर्फ उसको डिस्प्ले करने के लिए काम आएगा, ठीक है। मैं इस सबका एग्जांपल एक बार इकट्ठा ही दूंगी। स्प्लिट क्या होता है, इफ़ यू वांट टू डिवाइड योर स्ट्रिंग इनटू स्मॉल पार्ट्स, स्प्लिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये भी 12th में बहुत यूज़ होता है।
लेंथ का जैसे अगर मैं सपोज एक ही स्ट्रिंग से सारे एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखूँ तो लेंथ ऑफ एस विल डिस्प्ले, इट विल डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे, 5 6 7 8 9 10 11 11। इफ आई राइट एस डॉट कैपिटलाइज, एस डॉट कैपिटलाइज फंक्शन करूँगी तो क्या आएगा, इसमें ऑलरेडी एच कैपिटल है, सपोज स्मॉल होता है तो क्या हो जाता है कैपिटल, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, पहला लेटर क्या कर देता है, ये कैपिटल कर देता है। नाउ स्प्लिट, स्प्लिट क्या करता है, एक स्ट्रिंग को मल्टीपल स्ट्रिंग्स में डिवाइड करता है। जैसे मेरे पास है, सपोज मेरे पास है दिस इज़ माई पेन, ठीक है, दिस इज़ माई पेन। अब सपोज मैंने इस स्ट्रिंग को, इस एक्स एक स्ट्रिंग है, इसको मैंने स्प्लिट करना है डिफरेंट वर्ड्स में, तो मैं कैसे लिखूँगी, एक्स डॉट स्प्लिट, किस बेसिस पे स्प्लिट कर रहे हैं मैंने, स्पेस के बेसिस पे, देखो स्पेस है ना यहाँ पर, इस स्पेस 3 स्पेसिस, स्पेस के बेसिस पे मैंने इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा दिस इज माई पेन। बस तुमने ये याद रखना है, स्प्लिट फंक्शन इज टू डिवाइड अ सिंगल स्ट्रिंग इनटू मल्टीपल स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पर कितनी स्ट्रिंग्स बन गई, 4। एक स्ट्रिंग को मैंने स्प्लिट से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, 4 स्ट्रिंग्स बन गई। ओके, नेक्स्ट इज रिप्लेस, रिप्लेस इज टू रिप्लेस ओल्ड वैल्यू विद न्यू वैल्यू। सपोज मैं एस हेलो हेल करते हैं हम, ठीक है, हेल को मैंने हेवन से रिप्लेस करना है, सो हाउ विल आई राइट, प्रिंट एस डॉट रिप्लेस, ठीक है, इसमें जो हेल है उसको क्या बना दो, उसको हेवन, सो रिप्लेस हेल विद हेवन। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा हेल हेवन बन जाएगा। दिस फंक्शन इज यूज टू रिप्लेस वन वर्ड विद अनदर वर्ड। अनदर इज फाइंड, फाइंड तुम्हें नाम से पता चल रहा है, if you want to find something in a string like x is green revolution is a example, I am using same example as they are given in the book। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन एक एग्जाम्पल है, एक्स में एक वर्ड है, आई नीड टू फाइंड ग्रीन वर्ड, वेदर ग्रीन इज प्रेजेंट और नॉट, ग्रीन। ठीक है, तो क्या डिस्प्ले करेगा ये, 0 ऑन द स्क्रीन, बिकॉज ग्रीन कहाँ प्रेजेंट है, 0th, सॉरी ग्रीन इज प्रेजेंट, 0 मीन्स येस इट इज़ प्रेजेंट इन योर। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन का जी छोटा कर देती तो अब उसको नहीं मिलता ना यहाँ पर, बिकॉज केस सेंसिटिव है, डबल कोट्स में लिखा है आपने, तो यहाँ पे उस केस में क्या डिस्प्ले करता है, ये -1, -1 मीन्स स्ट्रिंग इज़ नॉट फाउंड। ठीक है, तो याद रखना, अगर तुमने मिल गया तो 0 आएगा, नहीं मिला तो -1 आएगा। ओके, नेक्स्ट इज इंडेक्स, इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन इज सेम एज फाइंड फंक्शन, देयर इज नो मच डिफरेंस। इंडेक्स फंक्शन में क्या होगा, हम इंडेक्स ढूंढेंगे बड़ी स्ट्रिंग में, हम सपोज हेलो में हमने ही वर्ड ढूंढना है कि कहाँ पर है, तो कैसे लिखेंगे हम, सपोज एस इज द स्ट्रिंग, एस डॉट इंडेक्स, ओके, सपोज एल ढूंढना है हमें, तो क्या डिस्प्ले करेगा मुझे, इसका क्या आएगा, इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 2, it will display 2 on the screen, index of the substring. Next is alpha, if I want to check whether my string, अगर मेरी string में suppose 1 2 3 है, ये डबल कोट्स में string ही बन गया, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये अल्फ़ाबेट है या नहीं, is alpha, so it will display false। ठीक है, false क्यों, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट नहीं है। ओके, अगर मैं ये यहाँ पर स्ट्रिंग इक्वल टू
मैगी एक वर्ड है, सपोज आई एम सर्चिंग स्ट्रिंग इज अल्फ़ा, तो ये क्या डिस्प्ले करता है, नाउ इट विल डिस्प्ले ट्रू। ठीक है, ऐसे इज अल्फ़ा फंक्शन भी तुम्हें काफ़ी बार यूज़ होता है। नाउ इज ALNUM, ALNUM मतलब AL मतलब अल्फ़ाबेट, NUM मतलब न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक। ठीक है, इट विल रिटर्न ट्रू इफ़ ऑल करेक्टर्स आर अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी उसमें अल्फ़ाबेट भी है और नंबर्स भी हैं, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल डिस्प्ले फॉल्स। इसका मैं एग्जांपल नहीं दे रही, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इज डिजिट, इट विल डिस्प्ले ट्रू अगर उसमें सारे डिजिट्स हुए, जैसे 1 2 3 का एग्जांपल लिया था मैंने, उस केस में ये इस डिजिट क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, टाइटल जैसे कैपिटलाइज था, वो फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देता था, लेकिन टाइटल क्या करेगा, जैसे टाइटल में क्या होता है, टाइटल में सारे वर्ड्स जितने भी, सपोज उसमें एस में हेलो वर्ल्ड कैपिटलाइज करूँगी तो मेरा सिर्फ एच कैपिटल होगा, अगर मैं टाइटल यूज़ करूँगी तो एच भी कैपिटल होगा और डब्ल्यू भी कैपिटल होगा। टाइटल मीन्स हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल बना दो। ठीक है, नेक्स्ट इज काउंट। काउंट इफ़ यू वांट टू काउंट द, जैसे हमने अभी पहले एक एग्जांपल दिया था मैंने, उसमें था कि अगर मैं एक स्ट्रिंग लिखी है, उसमें मैंने कोई करेक्टर या उसमें कोई वर्ड सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है और उसकी अकरेंस ढूंढनी है, कितनी बार आया है वो वर्ड। ठीक है, जैसे ओके आई टेक एन एग्जांपल, सो आई एम टेकिंग एक वेरिएबल ले लिया, हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो। ठीक है, ओके, एम डॉट काउंट, हेलो 12,25। ठीक है, अब तो मैंने 12th पोजीशन से लेकर 12 से लेकर 25 तक इंडेक्स पोजीशन, तुम्हें पता है 12 से 25 तक इंडेक्स पोजीशन में हेलो कितनी बार आया है उसको तुमने डिस्प्ले करना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी एक्सक्लेमेशन से हेलो कितनी बार आया एंड तक, 2 बार, सो इट विल डिस्प्ले 2 ऑन द टाइम। ठीक है, सो दिस इज टू काउंट द अकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज लोअर, अगर आपने सारे लोअर केस में कर देने हैं, सारे लोअर केस में करने हैं तो लोअर, सारे अपर केस में करने हैं तो अपर। अगर आपने चेक करना है कि वो लोअर केस में है या अपर केस में, तो इज लोअर, इज अपर, टू चेक वेदर दिस केस इज अपर और नॉट। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूंगी एक्स इक्वल टू पाइथन, पाइथन लिखा मैंने, नाउ इफ आई एम चेकिंग प्रिंट एस डॉट इज अपर, तो क्या आएगा, अपर में तो नहीं है ना, सारे पहला लेटर नहीं, पूरा स्ट्रिंग होनी चाहिए अपर में, सो इट विल डिस्प्ले फॉल्स। ठीक है, सपोज मैंने एक लिखा, एस में डाला, स्पेस डाली काफ़ी सारी, फिर मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, तो एल स्ट्रिप क्या होता है, एल स्ट्रिप इज टू रिमूव द स्पेसिस फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग, एल मतलब लेफ्ट। ठीक है, अगर मैं अब डिस्प्ले करूँगी एल स्ट्रिप, एस डॉट एल स्ट्रिप, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, इट विल डिस्प्ले मी हेलो। हेलो तुम्हें पता नहीं चलेगा, पर तुम देखोगे कि वो यहाँ से शुरू हो रहा है, बट अगर तुम एल स्ट्रिप ना लगाते तो हेलो यहाँ आता, क्योंकि वो उसके पहले थोड़ी सी स्पेस डालता। ठीक है, सो जैसे एल स्ट्रिप होता है, अब आपने लेफ्ट से तो रिमूव कर दिया, अब आपने राइट से भी करना चाहते हो तो आर स्ट्रिप। ठीक है, इफ एंड स्ट्रिप अकेला स्ट्रिप करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों की रिमूव कर देगा। स्ट्रिप इज टू रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज राइट। अगर आपने चेक करना है कि क्या ये स्पेस है या नहीं, सपोज मैंने जैसे तुम्हें कहा था मैं एम्प्टी स्ट्रिंग भी क्रिएट कर सकती हूँ एक स्पेस के साथ, तो मैं चेक करती हूँ इफ़ या प्रिंट एक्स डॉट इज स्पेस, तो इस केस में ये क्या देगा, ट्रू। ठीक है, स्पेस इज अ फंक्शन। वैसे ही जैसे आपने टाइटल पे केस करना सीखा था, वैसे चेक करने के लिए भी होता है, इस टाइटल क्या इसका हर करेक्टर का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, देन इट विल डिस्प्ले ट्रू। ठीक है, नाउ स्प्लिट से हमने क्या किया था, एक ही स्ट्रिंग को हमने टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड किया था डिपेंडिंग ऑन द
करेक्टर, जैसे सपोज मैंने अगर ओके तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ मैं, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये एक स्ट्रिंग है, अब इसमें मैंने इस स्ट्रिंग को 4 में डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा, तो मैं क्या करूँगी, एक्स डॉट स्प्लिट ब्रैकेट में कॉमा, तो कॉमा के बेसिस पे वो 4 स्ट्रिंग्स बना देगा, ठीक है। वैसे ही ज्वाइन होता है, ज्वाइन क्या करता है, एक ही स्ट्रिंग को मतलब वो स्प्लिट स्ट्रिंग्स होती हैं उनको उस करैक्टर के साथ ज्वाइन कर देता है। देखो अब जैसे मैं लिखूँगी y इक्वल टू ABCD, ठीक है। सपोज ये 4 स्ट्रिंग्स हैं, 4 करैक्टर्स हैं, मैं चाहती हूँ इन चारों करैक्टर के बीच में कॉमा कॉमा आ जाए, तो हाउ विल आई राइट, y डॉट ज्वाइन ब्रैकेट में कॉमा, तो क्या बन जाएगा, A कॉमा B कॉमा C कॉमा D, ठीक है। दी ये फंक्शंस ना ऐसे लर्न करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इफ़ यू विल प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, तुम्हारी बुक के एंड में, चैप्टर के एंड में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, तो कम से कम एक बार रीड कर के समझ लो, ताकि जब तुम्हें लर्न करना पड़े तो तुम कर लो, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन 2 और हैं, स्वैप केस एंड पार्टीशन, वो मत करना, वो छोड़ देना, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट इज़ ऑर्डिनल वैल्यूज़, तुम्हें बताया था। ऑर्डिनल वैल्यू अगर आपने किसी की फाइंड आउट करनी है, जैसे ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ ए प्रिंट, तो क्या डिस्प्ले करेगा, 65। वैसे ही अगर आपने ऑर्डिनल वैल्यू देख के करैक्टर फाइंड आउट करने, तो देयर इज़ अ फंक्शन CHR, it will display capital A. So these are the 2 last functions of this string. ओके स्ट्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं तुम्हारे चैप्टर के एंड में, प्लीज़ प्रैक्टिस एवरीथिंग और डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि ये सारा हमारा 11th का जो भी तुम लर्न करोगे ना, एवरीथिंग विल कम इन क्लास 12th, ठीक है।